Yes, Sagar. Shoot. How yeah, how do you define self-realization? All right. I hope the others can digest these questions and digest these discussions. So, self realization. So, the question comes, what are we trying to realize? Yes. The understanding comes from there. Mhm. Just hold on. All right. So, when it comes to self realization, so basically the question is, I mean, obviously, we're trying to realize the self. For that, we need to understand what the self is. So, is there any particular reason why you're asking this question? I've never been able to get a straight answer out of anyone. I was just trying to get it on an open forum. Ah, okay. Self realization. That is actually very deep. A straightforward answer is very difficult Uh, because the answer to the self itself is not clear, or even if it is clear, it is not accepted. mhm. Because then the question comes, what is the self? Okay. We only have things that have been told to us, things that have we have read. I mean, that's the only ways that we can find out about the self. That's Mhm. one way. The other way being, uh, what do you say, through experience. Mhm. So these are the two ways you find out what the self is. But then ultimately, when you go, realization of the self is actually realization of the supreme oneness with all. Mm. If it's a one line thing, this is it. But then Uh-oh. We've lost him. Mm. yes, am I audible now? Yes. Yeah, this is the challenge. Okay, just hold on. I don't know till where you heard. Mm. What was the last thing you said? Sorry, I think somebody's talking in the background or talking to us. I think you were exploring what is the self. And then the Yes, experience is one of the things. Yes. yes. So basically, the ultimate part of self realization connects to realizing the self as a part of the whole, the one. Okay. This is the ultimate. But Mhm. then, what is the self? Why should I realize? Is it going to give me what I want? Why should I be part of the whole? What is this whole? Blah, blah, blah. It goes there. Okay. So that's where the challenge comes. So this question is very deep and it's very difficult for you for us to get a straight answer. Okay, somebody background में से आवाज आ रहा है, background में आवाज है तो please mute कीजिए. Gaurav Phone. Kumar, sir, please mute your mic. Ah, yes, thank you. All right, Sagar.
Okay. You can ask more questions, that's fine. Thank you. Okay. What else? Please ask anybody any questions, anything they'd like to know or understand. किसी को शेयर करना है भी शेयर कर सकते हैं. Mm-hmm. Can you mute it? Yes, can you? Yes, somebody wanted to say something? Hi, sir. Dr. Sharyu here. No. Yes, doctor. Sharayu. Sharayu. Yes, Dr. Sharayu. Tell me. सर मुझे ये जानना था सेक्स और एनर्जी का क्या एक्चुअल कनेक्शन है और हम जैसे कि सेक्स को कंट्रोल करना चाहिए या फिर उसे सिर्फ मतलब ओशो जैसे बोलते हैं ना कि मतलब उसमें भी समाधि जैसा हमें फील आना चाहिए वो जो अवेयरनेस के साथ करना चाहिए तो मुझे थोड़ा सा डीप सेक्स और एनर्जी के बारे में जानना था मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग मैंने पढ़ा है बहुत सर इसके बारे में लेकिन एक्चुअल अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है उतने डीप लेवल तक मुझे मुझे वो भी बताए कुंडलिनी शक्ति को ऊपर ऊपर ऐसे लाना चाहिए सभी चक्रों को भेद कर वो ऊपर आनी चाहिए वो हाईएस्ट पावर है सेक्सुअल पावर हमारी ये सब मुझे पता चलता है लेकिन वो एक्चुअल कैसे हम मतलब प्रैक्टिकली कैसे उसको अप्रोच करें के ये मेरा थोड़ा क्वेश्चन था बहुत बढ़िया सवाल है. मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे वाले ज्यादा ओपन क्वेश्चंस का सेशन होना चाहिए. क्या बढ़िया सवाल आ रहा है, एकदम खतरनाक. ओके, सो ये एक सवाल हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली वील गो इनटू द मेडिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर टुडे. सो अच्छा डॉक्टर, मुझे ये भी पूछना है कि अभी तक मुझे समझना है कि आपका क्वेश्चन में आप सेक्स एज हाउ टू यूज इट और व्हाट इज इट गुड या बैड, या उसके साथ क्या करना है, एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हो आप? सर हमारी एनर्जी मतलब हमारी एनर्जी कैसे हम हमारी एनर्जी हर दिन हम प्रोटेक्ट करते हैं ड्रेन नहीं होना हम्म, देना चाहिए ऐसे है ना तो हम्म. मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है अगर मैं अगर एक विजन लेके मैं अगर चल रही हूँ तो विजन में मैं बहुत डीप उतर चुकी हूँ तो मेरा अभी सेक्स के बारे में उतना मतलब ये नहीं होता है मन नहीं होता है तो अगले पार्टनर को उतना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता क्यों अपीलिंग भी नहीं होता है वो तो मतलब कैसे प्रोटेक्ट करे कैसे उस पे काम करे कुछ पता नहीं चल रहा है अभी ओके, एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये आपका सवाल है? हाँ मतलब कनेक्शन क्या है एनर्जी और सेक्स का कनेक्शन. कनेक्शन क्या ओके, है ओके, बेसिकली ओके, ओके, ओके. सो बेसिकली फिजिकल एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग है, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाट इट इज फ्रॉम द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, अल्टीमेटली सेक्स एक एनर्जी है, एक क्रिएटिव एनर्जी है. ओ, एक मिनट. अच्छा, कहीं से भी अगर बैकग्राउंड में आवाज आने का चांस है, प्लीज आप म्यूट कीजिए. इन केस किसी को भी है ना, बीच में आप अनम्यूट कर सकते हैं. राइट नाउ मैं सबको म्यूट नहीं कर रहा हूँ. ओके, सो चलिए, सेक्स इज बेसिकली एन इंस्टिंक्ट एंड एनर्जी. अल्टीमेटली लेट्स लुक एट इट दैट वे. एक एनर्जी है जो हमको एक दिशा में पुश करता है फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन और रीजन. Just like hunger, it is an energy that will push your body towards eating food so that you are able to, let's say, generate your energy and have health and then move forward. So, like that, it is one of the core functions of sustenance of the planet. अभी anyway आज का टॉपिक है गॉड गुरु एंड हाउ टू कनेक्ट टू गुरु. सो अल्टीमेटली चलिए, आपका सवाल के थ्रू ही हम जाते हैं आपके ये टॉपिक में से. सो आज के टॉपिक के लिए, अल्टीमेटली अगर हम गॉड या दैट सुप्रीम पावर का अलग अलग डेफिनेशंस देखेंगे,
Okay, am I audible? Yes, now you are audible, sir. Okay. So I think I'll switch my video off because network का challenge है. All right. Okay. So continuing with the topic and linking it to the question of Dr. Sharayu, right? Yes, sir. Yes. Okay, doctor. Okay. So linking it to that question. So Boarding in progress. to get an understanding of God, usually we seek, we try to understand, we try to find out, we ask questions. Because now we are in the spiritual field, I also want more clarity. So, one of the simple ways is to refer the holy books, whatever books are there. Now, जो भी prominent God figures है, जो हम मानते हैं इंडिया में या कल हमारे कल्चर में, in Hinduism, we have three major ones, which is Lord Shiva, Lord Vishnu, Lord Brahma. Then in the Islam, we have Allah. Then in the Bible, yes, I mean, that's a debatable thing here. मैं debate के ऊपर नहीं जा रहा हूँ. Ultimately, there is one supreme God that is existing. That is also, especially in the Old Testament, when we start. So, ये सबसे एक चीज हमको भी, again, भगवान ये सब है. Now, there are different attributes to God. अभी शिव, Lord Shiv के सहस्त्र नाम है, 1,000 names, different names and attributes of God. लॉर्ड विष्णु के अलग अलग नाम है, 1,000 names. लॉर्ड ब्रह्मा के भी अलग अलग नाम है, 1,000 names. मैं इनका 3 ले रहा हूँ. Then we have 99 names of Allah. Then also there are different descriptions of God in the Bible, the way he is referred to. इसमें से कुछ चीजें कॉमन निकलता है. एक, क्रिएटर. टू, सस्टेनर, प्रिजर्वर. एंड थ्री, डिस्ट्रॉयर और पनिशर ऑफ इविल. ये तो उनका एट्रीब्यूट्स हो गया. नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट, एंड ये सब कॉमन है. ये जो भी मैं बोल रहा हूं ये कॉमन ओवरलैप है. अराउंड 30 नेम्स है जो सारे रिलीजन्स में ओवरलैप है. सो मैं वो 30 को ले रहा हूं. उसमें से ये थ्री है, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड पनिशर. नाउ अलोंग विद दिस देयर इज समथिंग कॉल्ड द ऑल परवेडिंग. मतलब हर जगह हमेशा है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, हमेशा हर जगह है, हर टाइम है, हर जगह है, एवरीवेयर. देन वी हैव समथिंग वेयर इट रेफर्स टू द मैनिफेस्टेड, मतलब एंड द अनमैनिफेस्ट, मतलब जो अभी तक फिजिकल रूप में आया है और जो फिजिकल रूप में नहीं आया है. ओके ये अलग 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 से अलग 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 नाम है भगवान के, गॉड के. एंड दिस इज कॉमन इन ऑल द थ्री मेजर रिलीजन सो कॉल्ड. इससे हमको ये आइडिया आता है कोई तो एक सोर्स है. ऑल्सो बाय द वे इंफिनिटी, लाइक जो हमेशा पहले से था और है और रहेगा. इनफाइनाइट, लिमिटलेस, अबंडेंट, ये भी नेम्स सारे रिलीजन्स में है. सो ये सारे चीजों से हमको ये आइडिया मिलता है कि कुछ तो एक एनर्जी, एक इनफाइनाइट एनर्जी या इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस या इनफाइनाइट कुछ तो है जो ये सब जगत को चलाता है. मॉडर्न साइंस में इसके हिसाब से, मॉडर्न साइंस के हिसाब से इट इज रेफर्ड टू एज द यूनिफाइड फील्ड थ्योरी. I mean, one of the ways of looking at it is consciousness. There is some consciousness which is all pervasive, हर जगह हर टाइम है और हमेशा से है. And also another way of referring to this is unified field theory. मतलब एक इनफाइनाइट एनर्जी या इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जो हमेशा से था, है, और बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रांग है और वो रहेगा. ओ, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते वीडियो भी आ गया. चलिए, सो नाउ जो डॉक्टर का क्वेश्चन है कनेक्टेड टू सेक्स, अगर क्रिएट करना है, one of the ways of creating that is through sex energy. So क्या ये गलत है या खराब है? नो. ऐसे अभी ये सारे नाम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्रिएशन इज अ वर्क ऑफ द सुप्रीम गॉड, राइट. नेक्स्ट, सस्टेनेंस, जो चीज को एक मेंटेन करके जाना. अगर सृष्टि को या अर्थ पे लाइफ को हमको मेंटेन करते जाना है, देन
also this is required because it is through the procreation or through reproduction that we have different creations and different through that we sustain different things. नाउ अगर और स्पिरिचुअल लेवल पे जाके देखेंगे, ये जो क्रिएट हो रहा है, ये जो क्रिएट या ये जो अभी बन रहा है अलग अलग लाइफ्स, इसके थ्रू ही है वो सोल जो ये लाइफ फॉर्म्स के थ्रू इवॉल्व होते जाता है। अभी ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है कि अल्टीमेटली इन द बिगिनिंग अगेन एज पर ऑल रिलीजन्स इफ यू गो टू सी there was one consciousness. The consciousness wanted to understand and know itself. For that, it wanted to experience things. So it started taking different forms, starting off from the smallest form to the most complicated forms. अब ये सारे forms को create करने के लिए sex energy is what is used. And ये सारे चीजों को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, ताकि वो सोल अलग 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 लाइफ फॉर्म्स में आके अलग 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 कॉन्शियसनेस में होके अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करके जब हम आ, क्या बोलते हैं एज वी गो, एज वी इवॉल्व, एज वी अंडरस्टैंड, this is all happening, or this is all a, let's say, function of the sex energy. Yes, there are certain schools who schools of thought are there जिसको बहुत गलत मानते हैं या विकार मानते हैं या गलत नेगेटिव मानते हैं. My personal point of view is it is just one of the functions that is there that needs to continue. Now, इसीलिए ये भी बोलते हैं कि ये गलत, अगर गलत बोलते हैं तो because we get stuck there. It's one of the things that lead you to entrapment. सोल को एक्सपीरियंस करना है एक चीज और उसके बाद अलग चीज एक्सपीरियंस करना है और अलग चीज एक्सपीरियंस करना है ताकि वो इवॉल्व हो जाए. अभी अगर उसको इवॉल्व होना है और एक ही चीज में वो अटके रहे तो इवॉल्व नहीं होगा. सो इट्स लाइक फूड, एवरी डे आई वांट ओनली रसगुल्ला, तो मुझे रोज रोज रसगुल्ला ही चाहिए. तो देन मैं अलग कुछ चीज, मुझे मुझे अलग नरिशमेंट नहीं मिलेगा, अलग कुछ मुझे टेस्ट करने को नहीं मिलेगा, अलग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. Right? So that is why it is seen as, what do you say, maybe not so good. So don't get stuck there. All right. So it is just an energy which helps us to create and sustain. All right. Now, abhi aapka question, I don't know if it comes to good or bad. It's just an energy for a particular purpose. Yes, it gives us also a form of happiness. It gives us pleasure. It gives us a driving force to move forward also. So, again, I am assuming, or I am hoping, or I'm assuming it's about the good and bad. क्या करना है इसके साथ? Ultimately, इसको क्या करना है इसके साथ, meaning ultimately we can either use it for creation, that is for children and moving forward. We can use it for, yes, pleasure. At the same time, once in a while, it's just like recreation. खाने से भी हमको अच्छा लगता है, अच्छी हवा से हमको अच्छा लगता है, अच्छा पानी से हमको अच्छा लगता है. ये भी एक एक्टिविटी है जिससे हमको अच्छा लगता है. Between couples, it is also a very important factor of bonding. It is also because there's a lot of exchanging that happens at that point of time. So it is also a factor of bonding. And अगर मान लीजिए लाइफस्टाइल अलग है, प्रॉब्लम यह है कि अगर हम वो एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो होता क्या है, वो एनर्जी पाइल अप होगा. अगर हमारे पाइप में पानी फ्लो होता रहता है तो प्रॉब्लम नहीं है. अगर पानी में जो फ्लो हो रहा है उधर अगर ब्लॉक आया तो पाइप फट सकता है. सेम वे, अगर वो एनर्जी सही तरीके से चैनलाइज नहीं किया तो हमारे फिजिकल बॉडी में तकलीफ आता है. देर आर मेनी स्कूल्स, मेनी व्हाट डू यू से, डिफरेंट schools of thought or different, yeah, I would say schools of thought, जहाँ पे इन चीज को बहुत गलत माना है. और आप देखोगे, as this is what we have observed, तो वो सारे schools, मतलब बहुत सारे members उस school के, schools हैं, बहुत सारे हैं, they have a lot of sexual related issues, like for women uterus breast related, ovaries related, for men prostate related, जो normal में भी आते हैं,
बट बिकॉज उसको सप्रेस किया जाता है या यूटिलाइज नहीं किया जाता है, उसको गलत बोला जाता है, तो उसके वजह से तकलीफ आता है, बॉडी को भी तकलीफ आता है. सो इट्स अबाउट रेगुलेटिंग एंड चैनलाइजिंग इट इन द राइट वे. नाउ ultimately it is a part of the divine energy. Abhi, we have discussed about the different like the ways that God is seen, the way that or what God is. It is an infinite consciousness, it is an infinite energy, it is always there, was there, is there. Abhi God का हम करे क्या, सवाल ये भी आता है. तो शुरुआत में एक सवाल आया था फ्रॉम सागर, व्हाट इज अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन. सो वो एनर्जी से हम क्या करें, वो एनर्जी से हम आए हैं अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए. और मान लो कहीं पे हम अटक गए, हमको एक चाहत है, देयर इज अ डिजायर टू एक्सपीरियंस. सो ये एक्सपीरियंस के चक्कर में कुछ भी हो सकता है. पैसा हमको चाहिए, कैसा फील होता है. खाना हमको चाहिए, कैसा फील होता है. इवन इफ इट इज लाइक द क्वेश्चन अबाउट सेक्स, वो कैसा फील होता है, क्या करना है इसके साथ. गाड़ी चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप्स चाहिए, ये कैसा फील होता है. नाउ जो रॉ अनयूटिलाइज्ड एनर्जी जो है, रॉ, जैसे समुंदर में पानी, हमको पर्पस है पानी पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए. बट एकदम समुंदर का पानी से बार बार हम नहाएंगे, शरीर को तकलीफ होगा. समुंदर का पानी डायरेक्ट हम पिएंगे, तकलीफ होगा. यस. तो हम क्या करेंगे, रास्ता निकालेंगे. अभी इसके दो तरीके हैं. या फिर हम खुद बैठ के उसको क्लीन करें पानी को, या उसके जिसके लिए हमको पहले सीखना पड़ेगा. या फिर कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी ये काम करके बैठे हैं, उनके पास जाए. अगर हम उनके पास जाएंगे, हमको शायद 1 या 2 साल और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और दर्द और प्रॉब्लम्स टॉलरेट नहीं करना पड़ेगा. बिकॉज जो ऑलरेडी वो कर चुका है उनको पता है. जो हमको 2 महीना लगेगा वो शायद 2 हफ्ते में बता देंगे. दिस इज वेयर द रोल ऑफ अ गुरु कम्स. Because in the spiritual concept, a guru is somebody who has already done a lot of mistakes, who has gone through a lot of problems. They must have done or suffered a lot through incarnation, yeah, through different bodies. Or even if it's one life, yehi life mein. They would have learned a lot of things. So from that lot of things that they learn, they will have realized, okay, what exactly is supposed to be done here in this situation. So India may specifically, the most common description of guru is, no, somebody who dispels darkness, gives us light, right? So what is that light that he gives us? It is a light of knowledge. It is a light of clarity. It is a light of guidance, let's say guidance, knowledge, and clarity. Okay, he shows us the way. So in spiritual teachings, especially as per the teachings of pranic healing or any other spiritual school, God gives you the strength, Guru shows you the way. शक्ति जो है ईश्वर परमपिता परमेश्वर हमको देते हैं, और गुरु जो है हमको राह दिखाता है. सो क्या गुरु कंपलसरी है सबके लाइफ में? नहीं, हमारे तरीके से भी कर सकते हैं. जैसे कुकिंग के लिए क्या आपको सीखना ही पड़ेगा? नहीं, बैठ के एक्सपेरिमेंट करो, कोई बात नहीं, खाओ, बीमार हो जाओ, उसके बाद वापस हॉस्पिटल जाओ, उसके बाद फिर से एक्सपेरिमेंट करो, दूसरों को भी बीमार करो, उससे समझ में आएगा, ओ ये चिली नहीं डालना था, अच्छा नमक ज्यादा हो गया, ओ अच्छा अच्छा ओके. या जस्ट लर्न फ्रॉम somebody who's already done fast. So if you want to accelerate your progress, you go for a guru. Now क्या गुरु स्पिरिचुअल टाइप का ही है? नहीं. एनीबडी हु गिव्स एंड शेयर्स यू नॉलेज, वो गुरु है. गुरु के अलग अलग मीनिंग्स है. एक पर्टिकुलर मीनिंग भी है गुरु ऑफ दैट वर्ड, उसका डेरिवेशन है कि somebody who is pregnant with knowledge. मतलब उनके अंदर इतना सारा नॉलेज है या फिर तरीके हैं कि वो he gives birth to new experiences and new life. A new life, not physical life, but a new life as in, what do you say, a new way of life, a new experience of life. Okay, so he can be of any way. Physical level पे हमारा जिम ट्रेनर या डॉक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि हमको दिखाते हैं, सिखाते हैं, जो भी हमको सिखाते हैं. एनर्जी एंड स्पिरिचुअल लेवल पे, यस, स्पिरिचुअल गुरुज आर देयर.
इमोशनल मेंटल लेवल पे भी देर आर पीपल हु आर गुड एट दैट ऑल्सो, साइकोलॉजिस्ट्स, काउंसलर्स, ऑल दीज पीपल, वो सब हमारे गुरुज या टीचर्स ही है। अगेन, क्या गुरु कंपलसरी है? नहीं, हम खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक जीपीएस ऑलरेडी है जो फट 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 रास्ता दिखा सकता है, व्हाई नॉट गो फॉर इट? मेक्स लाइफ इजी। डजंट You don't have to go through struggles and waste your time doing that. So that is the purpose of a guru. Ultimately, the infinite energy, the infinite consciousness जो है, that will give you the strength. And वो infinite consciousness energy को ज्यादा जो हमसे समझे हैं, वो है गुरु या टीचर, जो भी आप कॉल करना चाहते हो। ओके, उनका काम ही ये है कि वो बोलते हैं कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जैसे पावर प्लांट में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर डायरेक्टली हम घर का अप्लायंस कुछ कनेक्ट करेंगे, बूम हो जाएगा। सो उसको हमारे पावर प्लांट में, मेन पावर प्लांट से सब सब डिवीजन में लेके आके, और उसको छोटा छोटा स्टेप डाउन करके हम हमारे घर तक लेके आते हैं, ताकि हमारा अप्लायंस उसमें कनेक्ट हो। सेम वे, इतना इनफाइनाइट एनर्जी जो है, वो उसको एक इजी तरीके से, जिस जो हम हजम कर पाए, वो तरीके से देने वाले हैं गुरु। Okay, spiritual level पे guru goes in different incarnations also, and there are always different gurus and teachers who are watching on you. now अभी इसमें एक और चीज है, दो टाइप के हैं। एक है फिजिकल, जो फिजिकल बॉडी में है। दूसरा है नॉन फिजिकल, जो फिजिकल बॉडी में नहीं है। सो फिजिकल गुरु तो ऑब्वियसली बहुत इजी हो गया, बिकॉज यू कैन गेट टू सी द पर्सन, बी विद द पर्सन। As per my teacher, he has also mentioned that going to a physical guru, अगर आपका पास है, आप किसी को अगर मानते हो, और अगर आपके पास है, तो going to a physical teacher, when you are in his presence and his aura, automatically there will be lot of radiance and positivity for you, because उनका एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इतना हाई है, कुछ तो हमारे अंदर उसका इन्फ्लुएंस आएगा। सिंपल सी बात है, छोटे बच्चे जब हम थे तो पेरेंट्स तो बोलते थे, अरे गलत संगत का असर बोलते हैं, तो गलत संगत में नहीं आना चाहिए। सेम वे, अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के साथ उनके साथ रहे, तो इट इज वेरी गुड। दिस इज द इजी पार्ट। व्हाट अबाउट द अदर पार्ट, जो हमारे इनर टीचर है या नॉन फिजिकल टीचर है? हमारे अंदर भी एक स्पिरिचुअल टीचर है, हमारे अंदर भी, और नॉन फिजिकल लेवल में भी एक टीचर्स है, उनके साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। आज हम वो देखेंगे। ओके, सो referring a little before I continue, going back to doctor, your question, we will discuss this a little later because of the time. But yes, I really like your question and we will discuss this. Let's see, maybe after the session, if I have time, then we will discuss. Okay, and we will Yes, give you yes. clarity there by God's grace. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Not issue. Okay, sir. All right. So we will see a technique of how to connect to a guru. मान लीजिए, या टीचर, मान लीजिए अगर आपके पास कोई फिजिकल टीचर है और आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ तो ब्लॉकेजेस है जो नहीं अलाउ कर रहा है, उस मामले में भी आप ये यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास फिजिकल टीचर नहीं है, कोई है जो आप मानते थे, अगर आप उनके साइड से गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो भी ये टेक्निक आप उधर यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट इज इट? This is again not anything that I have done or developed. This is something that I have also learned from my teacher. Obviously, अगर वो teachings नहीं होते, तो I don't know how many lifetimes I would have given to learn this. But first thing, before connecting to a teacher or a guru, क्या है जो हमको ब्लॉक करता है? Anybody has to say anything? You can unmute and speak. क्या है जो हमको ब्लॉक करता है from connecting and receiving? Connecting is there, but from receiving. Pride? Anybody has any guesses? Pride, yes, ब्लॉक कर सकता है। और क्या है? Fear? Fear, yes, और क्या है? ईगो। Yes, very good, और क्या है? Doubt? Doubt, yes, very good, और क्या है? क्या क्या ब्लॉक कर सकता है? ट्रस्ट नहीं होता नेटवर्क, है कभी कभी। हाँ, ट्रस्ट, डाउट, ट्रस्ट। यस। अभी हमारे केस में कभी कभी
Yes, doubt, lack of trust. Yes, perfect. So these are the things that block us. अभी ये सारे मतलब और भी बहुत सारे चीजें हैं, मे बी हम रेडी नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि when the student is ready the teacher appears. बिकॉज ऑब्वियसली जैसे हमने अभी बात किया, अगर मान लीजिए अप्लायंस कैपेसिटी से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर अप्लायंस के अंदर गया, बुफ हो जाएगा। सेम वे, जब तक वो स्टूडेंट रेडी नहीं है उनके जी के हिसाब से जो उनका हैंडल कर सकते हैं वही टीचर वो ढूंढ के निकालेंगे, या फिर वो अट्रैक्ट करेंगे, या फिर वो डिटेंगे, या फिर वो ढूंढ के निकालेंगे। सिंपल सी बात है। मान लीजिए उस टाइम पे बहुत हायर लेवल टीचर भी मिला, हजम नहीं होगा। शायद 10 साल बाद वही बड़े टीचर के पास जाएंगे, बट उस टाइम पे हजम नहीं होगा। जस्ट लाइक हाउ केजी का स्टूडेंट को पीएचडी वाले प्रोफेसर आके सिखाए, कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, 10 15 20 साल के बाद शायद उसी प्रोफेसर, अगर वो जिंदा है तो उसी प्रोफेसर के पास जाएंगे कि सिखाने के सीखने के लिए। सो when the student is ready, as per the energy of the student, whoever it is, the teacher will either, बोलते हैं कि वो अपीयर होंगे, या फिर हम उनको ढूंढ के निकालेंगे, या फिर हम अट्रैक्ट होंगे उधर, जो भी। ओके, अभी उस केस में भी फियर, डाउट, लैक ऑफ ट्रस्ट, ईगो, ये सारा चीजें तो आते हैं। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बोले, ये 3 कैटेगरी में आ सकता है। चलो एडवांस के लिए 4। क्या है? कुछ तो फिजिकल ब्लॉकेज होगा, फिजिकल बॉडी में कुछ तो तकलीफ होगा जिसके वजह से आप उनका टीचिंग्स ले नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरा, इमोशनल लेवल ब्लॉकेजेस होंगे। तीसरा, मेंटल लेवल ब्लॉकेजेस होंगे। कुछ चीजें जो हम बिलीव करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा होता है, डाउट, क्वेश्चन, ये सारा चीजें आता है। इमोशनल लेवल पे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम कंफर्टेबल नहीं होते, बिकॉज कुछ तो ट्रिगर हो रहा है, कुछ तो सुनने के बाद लग रहा है कि ओ ये क्या हो रहा है। ये सारे ब्लॉकेजेस हैं। और ये ब्लॉकेजेस फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, अल्टीमेटली इसीलिए आता है क्योंकि हम उस चीज से अटैच है। आइदर वी आर अटैच्ड एक्सेसिवली टू द फिजिकल बॉडी, कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं चाहिए, या फिर हम इमोशन से इंपॉर्टेंट है, अरे वो सर ने मेरा इंसल्ट किया, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं नहीं करेगा। या फिर हमारे थॉट्स, नहीं नहीं नहीं, इनके वो समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं, मेरा बिलीफ ऐसा नहीं है, ये गलत है। इट कुड बी दिस वे ऑल्सो। बट इफ यू आर रेडी टू लेट गो, एटलीस्ट फॉर दैट टाइम, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट फॉर दैट टाइम, आपके फिजिकल बॉडी से आपका ध्यान हटाए, आपके इमोशन से आपका ध्यान हटाए, आपके थॉट से आपका ध्यान अगर हम हटाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम ज्यादा रिसेप्टिव हो जाएंगे, हम ज्यादा रिसीव सर कर वो पाएंगे। भी नहीं होता है। हम्म। हेलो। यस। सर वही नहीं होता, वो लेट गो नहीं होता है सर। करेंगे, तो हेलो। अभी उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। यस, अभी उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। And let go, in fact, maybe we don't have to completely let go. Maybe थोड़ा उसको पॉज करने का है, बस। लेट गो, शायद लेट गो बहुत डिफिकल्ट है, पर थोड़ा टाइम के लिए सबसे मुश्किल से मुश्किल काम भी हम लाइफ में खुद को सप्रेस करके कर सकते हैं, थोड़ा टाइम के लिए। हाँ, 10 दिन करने को बोला तो प्रॉब्लम होगा, ये आधा 15 मिनट के लिए करने का, बाकी वापस लेके जाओ, वापस लेके आ जाओ, कोई बात नहीं। सो वी विल सी। फर्स्ट स्टेप, detach yourself for that time, not your entire lifetime, for that time, from your attachments, which is your body, your emotions, your thoughts. उसके लिए अगेन टीचर ने दिया है सोल एफर्मेशन। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द इमोशन, आई एम नॉट द थॉट, आई एम नॉट द माइंड, आई एम द सोल। ये जब हम डालते हैं राइट नाउ, हम सब के अंदर वो सुप्रीम गॉड का इनफाइनाइट एनर्जी घूम रहा है। वही है जो बनाते हैं, वही है जो सस्टेन करते हैं, वही है जो उसका नाश करते हैं, और वो हर जगह हर टाइम पे है। अगर ऐसा है तो राइट नाउ इनसाइड अस द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम इज फ्लोइंग, राइट? सो इट इज देयर।
वो एनर्जी में आप एक डालो, एक थॉट कि मुझे इससे डिटैच कर दो, एंड देन रिलैक्स। ऑटोमेटिकली वो उस टाइम के लिए हो जाएगा। हाँ, कुछ लिमिटेशंस होंगे जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम तक नहीं जाएगा, उस टाइम के लिए होगा। सो वी डू फर्स्ट द सोल एफर्मेशन, देन वी डू अ प्रेयर। द प्रेयर इज ऑफ शरणागति। जैसे हमारे जो भी स्पिरिचुअल टीचर में आप मानते हो, जो भी स्कूल में है, मतलब स्पिरिचुअल स्कूल में, जो भी रिलीजन में, जो भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स टीचर का आप मानते हो, शरणागति प्रेयर कीजिए। और उसके बाद देखिए आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स और कैसा कैसा आपका लाइफ होता है। सो राइट नाउ वी विल प्रैक्टिस दिस। ओके, वी विल डू द मेडिटेशन एंड वी विल प्रैक्टिस दिस। जस्ट गिव मी अ मिनट। परफेक्ट। बाय गॉड्स ग्रेस 8 बजे है पीक ऑफ द फुल मून। और बिना टाइम देखे ऑटोमेटिकली कोई तो टीचर या गाइड ने बोला अभी चलो स्टॉप टॉकिंग, लेट्स स्टार्ट मेडिटेटिंग। सो हो गया। सो नाउ आई विल म्यूट एवरीबॉडी। There are naughty children also sometimes. So just a minute. And yes, please stay till the end because I will also reveal something that might help all of you afterwards. But yes, hold on. Just see. I will just mute everybody. In the meantime, all of you can get ready. Just relax. There's a lot of fluctuations. All right. So, let us start. सबसे पहले आपके हाथ प्रेयर पोजीशन में लेके आइए। आज का मेडिटेशन हम Sorry, करेंगे sir. गुरु। Uh, यस, टेल मी। आई थिंक Hello, sir. यस। सर कोई पूछ रहा है कि पीरियड्स में मेडिटेशन कर सकते हैं क्या? ब्लीडिंग कम है या फिर इफ इट्स योर फोर्थ और आफ्टर द फोर्थ डे देन यू कैन। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू है, ज्यादा है, तो पहले का 2 पार्ट कीजिए, बाद में मैं बताता हूँ। वी विल गाइड। ओके, पहले का 2 पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। आपके हाथ प्रेयर पोजीशन में लेके आइए। टच इट टू योर हार्ट। ऐसे आपके हाथ रख सकते हैं। ये जो थंब का पार्ट है आपके हृदय के पास टच कीजिए। आपका ध्यान पूरा आपके हृदय केंद्र की ओर जाने दीजिए। एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। टू द सुप्रीम गॉड, we humbly pray for your divine blessings, for your divine light, divine love, and divine power. गहरी सांस लेके छोड़िए। Next, to my spiritual teacher, to all spiritual teachers, to my inner spiritual teacher, to all the spiritual teachers of past, present, and future, we humbly pray for your divine blessings. हम आपके दिव्य आशीर्वाद का आह्वान करते हैं।
आपकी दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति का आह्वान करते हैं। आपके मार्गदर्शन और संरक्षण का आह्वान करते हैं। हमको सही रास्ता दिखाइए। हमको पूर्णता के ओर मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। गहरी सांस लेके छोड़िए 3 बार। हाथ को उधर ही रखते हुए हम 4-7-8 का ब्रीदिंग करेंगे, जहां पे 4 काउंट के लिए हम सांस लेंगे, 7 काउंट के लिए हम सांस रोक के होल्ड करेंगे, और 8 काउंट के लिए हम सांस छोड़ेंगे मुंह से। ओके, कीप योर हैंड्स क्लोज टू योर हार्ट इन प्रेयर पोजिशन। मैं काउंट करता हूं, हम गाय साथ में करेंगे। With the intention of releasing all negativity and to keep yourself receptive, गहरी सांस लीजिए 4 काउंट के लिए। Inhale 1 2 3 4, hold 2 3 4 5 6 7, मुंह से सांस छोड़िए 2 3 4 5 6 7 8, relax. Inhale 1 2 3 4, hold 2 3 4 5 6 7, मुंह से सांस छोड़िए 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। मुंह से सांस छोड़ने के टाइम पे आप ऐसे भी आप कर सकते हो, आपको और ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। इनहेल, गहरी सांस लीजिए 1 2 3 4, होल्ड 2 3 4 5 6 7, सांस छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। वंस मोर, नाक से सांस लीजिए, इनहेल 2 3 4, होल्ड 2 3 4 5 6 7, रिलैक्स। सांस छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। अभी थोड़ा सा रिचार्ज करेंगे, 6-3-6-3 का ब्रीदिंग करेंगे। 6 काउंट के लिए सांस लेना है, 3 काउंट के लिए सांस होल्ड करना है, 6 काउंट के लिए सांस छोड़ना है, और 3 काउंट के लिए होल्ड करना है। इनहेल फॉर 6 काउंट, होल्ड फॉर 3, एक्सहेल फॉर 6 काउंट, होल्ड फॉर 3। आई विल गाइड। ओके, वी विल डू इट 5 सेट्स। और जब आप इनहेल एक्सहेल करते हो, मन में रखना जो भी क्लीन फ्रेश एंड हेल्दी ऊर्जा है, शांति की ऊर्जा है, वो आप ग्रहण कर रहे हैं। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, स्ट्रेस वाली टेंशन है, लेट गो, ब्रीद इट आउट नाक से। इधर नाक से इनहेल, नाक से एक्सहेल। ओके, हम गाइड करेंगे। इनहेल क्लीन फ्रेश एंड हेल्दी प्राणा, इनहेल 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3, नाक से छोड़िए 2 3 4, ऑल द डर्टी नेगेटिव एनर्जी, होल्ड 1 2 3, इनहेल 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3, नाक से छोड़िए डर्टी, डिजीज, नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस, वरी, टेंशन, होल्ड 1 2 3, सांस लीजिए क्लीन फ्रेश हेल्दी, पीस, लव, जॉय, होल्ड 1 2 3, एक्सेल डर्टी, नेगेटिव, स्ट्रेस, वरी, टेंशन, एंगर, होल्ड 1 2 3, inhale clean fresh healthy, hold, exhale dirty, disease, negative, stress, worry, tension, hold. 2 more times, inhale 2 3 4 5 6, hold, exhale 1 2 3 4 5
6. Hold. Once more, inhale. 3, 4, 5, 6. Hold. Exhale. 1, 2. जो भी नहीं चाहिए, exhale. 6. Hold. Relax. Now we will do the soul affirmation for temporarily detaching yourself from your attachments just for this some time. आपके हाथ अगेन आप प्रेयर पोजिशन में लेके आ सकते हैं, हृदय को टच कर सकते हैं. बी अवेयर ऑफ योर हार्ट. जो लेट गो का एबिलिटी आपके अनाहत में है. तो ओके, ये आप एक टेक्निक ये कीजिए. आपके लेफ्ट हैंड को लेके आपके अनाहत में टच कीजिए, टैप कीजिए, टैप 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 टैप. से आई रिलीज, आई लेट गो. आई रिलीज, आई लेट गो. आई रिलीज, आई लेट गो. थैंक यू. बस हो जाएगा. अभी आपके हाथ लेके रखिए अनाहत के आसपास, टच करते हुए. आपके शरीर की ओर ध्यान लेके जाइए. कहिए, मैं ये शरीर नहीं हूं. आई एम नॉट दिस बॉडी. और ऐसे कल्पना कीजिए कि आपका शरीर व्हाइट लाइट बन गया है. आपका ध्यान अभी आपके इमोशंस की ओर लेके जाइए और कहिए, मैं ये इमोशंस, ये भावनाएं नहीं. आई एम नॉट दीज इमोशंस. और आपके इमोशंस को भी पिघलने दीजिए, व्हाइट लाइट बनने दीजिए. आपका ध्यान आपके विचारों की ओर लेके जाइए. जो भी आपके सोच विचार है उसको देखिए और कहिए, आई एम नॉट दीज थॉट्स. मैं ये सोच, ये विचार नहीं हूं. और ऐसे कल्पना कीजिए कि व्हाइट लाइट वो बन गए हैं. आपके अवेयरनेस को, आपके ध्यान को ऊपर उठने दीजिए और कहिए, आई एम नॉट इवन द माइंड. मैं, मेरा माइंड, मन, चित्त वो भी नहीं हूं. और कल्पना कीजिए वो भी व्हाइट लाइट बन गया है. जो भी है, जैसा भी है, जहां पे भी है. तो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं. आई एम द सोल, a being of divine light, love and power. दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति का एक स्वरूप हूं, जिसके भीतर सब कुछ है. दिव्य प्रेम है जो सस्टेन करता है, जगत को चलाता है. दिव्य प्रकाश है, लाइट, इंटेलिजेंस. एंड दिव्य शक्ति है, पावर. दैट वेरी सेम पावर ऑफ द ग्रेट सुप्रीम इनफाइनाइट बीइंग. और अभी हम शरणागति का प्रेयर करेंगे. बी अवेयर ऑफ योर स्पिरिचुअल टीचर. अगर फिजिकल फॉर्म में है उनको आप याद कर सकते हैं, उसको स्मरण कर सकते हैं. अगर फिजिकल बॉडी में नहीं है तो उनका आप स्मरण कर सकते हैं. अगर आपको पता नहीं कौन है, क्या है, कोई बात नहीं. जस्ट बी अवेयर, माई स्पिरिचुअल टीचर. वो जो भी है, जहां पे भी है, ऐसे एक इंटेंशन रखिए. व्हाइट लाइट देखिए बस. और मन में मेरे साथ दोहराइए. मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिपीट करूंगा. Salutations to the great supreme being. परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम.
Salutations to my spiritual teacher. मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव को भी प्रणाम. Salutations to the lineage of my spiritual teacher. मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव के परंपरा को प्रणाम. I, the soul, salute the divinity in you. मैं आत्मा आपके भीतर जो दिव्यता है उसको प्रणाम करता हूं. I, the soul, recognize my spiritual teacher in you. मैं आत्मा आपके भीतर जो मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव है उनको पहचान लिया है और मैंने जान लिया है. I, the soul, am super receptive and super conductive at all levels. मैं आत्मा सारे स्तर पर पूर्णता से स्वीकारता हूं और पूर्ण तरीके से परम प्रवाहित हूं. I, the soul, am super receptive and super conductive to all the divine energies and blessings passing through you. मैं आत्मा आपके द्वारा जो भी दिव्य ऊर्जा है और दिव्य आशीर्वाद है वो जो भी बह रहा है उसके ओर पूर्ण स्वीकारता और पूर्ण तरीके से परम प्रवाहित हूं. Yes, to my spiritual teacher, yes, thank you. हाँ आध्यात्मिक गुरुदेव, धन्यवाद आध्यात्मिक गुरुदेव. हाँ आध्यात्मिक गुरुदेव, धन्यवाद आध्यात्मिक गुरुदेव. हाँ आध्यात्मिक गुरुदेव, धन्यवाद आध्यात्मिक गुरुदेव. अभी जो हो रहा है होने दीजिए. 3 बार गहरी सांस लेके छोड़िए और जो हो रहा है होने दीजिए. और अभी हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे. किसी को भी मेडिटेशन के बीच में अगर कोई भी तरीके से तकलीफ होता है आप स्टॉप कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट लिसन. बस करने की जरूरत नहीं, आप सुन सकते हैं. आपके आंखों के लेवल के ऊपर थोड़ा आपके आध्यात्मिक गुरु को संकल्प कीजिए. उनको एक सुनहरी बॉल, एक गोल्डन बॉल, एक सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट में संकल्प कीजिए. और ऐसे संकल्प कीजिए उनके हाथ से आप तक उनके आशीर्वाद पहुंच रहे हैं. स्माइल, से थैंक यू, थैंक यू. और ऐसे कल्पना कीजिए
कि आपके गुरुदेव उस सुनहरी रोशनी में रह के आपके ओर आ रहे हैं। आपके सर के ऊपर से, आपके अंदर, आपके क्राउन केंद्र से नीचे, धीरे धीरे प्रेम से नीचे नीचे आपके हृदय तक पहुंच गए हैं। और अभी आपके हृदय में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं, आपके हृदय, आपके अनाहत खुल रहा है। और जैसे आपके अनाहत खुल रहा है, आपके हाथ भी आशीर्वाद मुद्रा में खोलिए, सामने की तरफ हथेली रखते हुए। सामने एक पृथ्वी को कल्पना कीजिए जिसमें सारे जीव जंतु हैं, जो भी हम जानते हैं, जिनको भी हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, सब ये पृथ्वी पर है। स्माइल गुरु का एक माध्यम बन के आशीर्वाद पहुंचाइए शांति का। ऐसे कल्पना कीजिए कि दिव्य शांति आपके हृदय में उत्पन्न होके आपके हाथों के द्वारा बह के, हथेलियों से निकल के हर एक जीव जंतु प्राणी तक पहुंच गया है। से थैंक यू। आशीर्वाद पहुंचाइए दिव्य प्रकाश का, ताकि हर एक जीव जंतु के जीवन में अंधकार मिटे। हर गुरु वही चाहते हैं, गुरु का माध्यम बन के हर एक जीव जंतु प्राणी तक, जो शरीर में है और जो शरीर में नहीं है, उनको मुक्ति का प्रकाश का आशीर्वाद पहुंचाए एक माध्यम बन के। से थैंक यू। अभी आशीर्वाद पहुंचाइए दिव्य प्रेम का, हर एक जीव जंतु तक। May they be blessed with divine love. हर गुरु के हृदय में हमेशा प्रेम अनंत होता है। उनका एक माध्यम बन के आपके हाथों द्वारा हर एक जीव जंतु तक पहुंचाइए, जो शरीर में है और जो शरीर में नहीं है, उन तक भी पहुंचाइए। और कहिए थैंक यू। और अभी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद पहुंचाइए। हर एक जीव जंतु प्राणी तक, ताकि वो फुलफिल रहे, खुश रहे, मुक्ति के ओर। उनको खुद के दुख दर्द और पीड़ा से मुक्त होने का शक्ति का आशीर्वाद दीजिए। और दूसरों की सहायता करने का भी शक्ति के आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। अभी हाथ ऐसे ही रहने दीजिए और आपका ध्यान ऊपर लेके जाइए आपके क्राउन केंद्र तक। और ऐसे कल्पना कीजिए कि आपके क्राउन केंद्र तक
परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा पहुंच रहा है और आपके हथेलियों द्वारा हर एक जीव जंतु प्राणी तक पहुंच रहा है। Bless every person, every being on Mother Earth with light, love, and power. कहिए तथास्तु। और अभी आपके क्राउन और हृदय दोनों की ओर ध्यान जाने दीजिए। परमपिता परमेश्वर गुरु का माध्यम बनके हर एक जीव जंतु तक आशीर्वाद पहुंचाइए, दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति का। Let everybody be blessed with good health, with happiness, with happy relationships, with prosperity and abundance. तथास्तु। और अभी आपका हाथ धीरे नीचे रखिए और आपके क्राउन के ऊपर आपका ध्यान जाने दीजिए। जहां तक जाता है वहां तक जाने दीजिए। और कल्पना कीजिए एक वाइट लाइट। अभी मैं सिर्फ 3 बार ओम का जप करूंगा, आप सिर्फ सुनिए। उस लाइट के ओर ध्यान आपका रहने दीजिए और जो हो रहा है होने दीजिए। ओम। बी अवेयर ऑफ दैट वाइट लाइट। ओम। बी अवेयर ऑफ दैट वाइट लाइट। ओम। रिलैक्स। जो हो रहा है होने दीजिए। थोड़े पल के लिए लेट गो, लेट गो, लेट गो नाउ। एक गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए। आपका ध्यान अपने शरीर की ओर वापस लेके आइए और सांस छोड़िए। फिर से गहरी सांस लीजिए, होल्ड। आपके शरीर की ओर ध्यान लेके आइए और सांस छोड़िए। वंस मोर, गहरी सांस लीजिए, शरीर की ओर ध्यान। उंगलियों को हिलाइए, पैरों की उंगलियों को हिलाइए, ध्यान शरीर पर लेके आइए, सांस छोड़िए।
अभी सिर्फ आप आराम से बैठ जाइए स्वीकार मुद्रा में, जैसे आप कुछ स्वीकार कर रहे हैं। आपका हीलिंग होगा, हम सबका हीलिंग होगा। जो भी एक कोई दुख, दर्द, पीड़ा जो आपको परेशान कर रहा है, वो शारीरिक होगा, मानसिक होगा, रिलेशन, प्रॉस्पेरिटी, जो भी होगा, बस एक बार उसके ओर आपका ध्यान जाने दीजिए, उसको याद कीजिए, आपके सामने देखिए उसको। अगर आपके अंदर है, उसको कोई ना कोई एक रूप दीजिए, एक शेप दीजिए, और आपके शरीर के बाहर आते हुए देखिए उस रूप में। गिव इट एनी शेप, एनी कलर, मतलब कुछ भी आपके सामने देखिए, और ये कल्पना कीजिए, ये जो भी है, ये मेरा प्रॉब्लम है। अभी रिलैक्स, लेट गो। आप बस जो हो रहा है होने दीजिए, वो प्रॉब्लम का हीलिंग अभी होगा। मन में बोलिए, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, यस, यस, यस। गहरी सांस लेके छोड़िए 3 बार, आराम से। और अभी वो देखिए जो आपको चाहिए। शायद शांति हो सकता है, अच्छे स्वास्थ्य हो सकता है, संपत्ति, समृद्धि, जो भी है, अच्छे रिलेशनशिप्स, कोई रूठा हुआ है या रूठी हुई है, वो आपको कॉल कर रहे हैं, जो भी पॉजिटिव देखिए। आपके बाहर देखिए कि वो हो रहा है, या फील कीजिए कि वो हो गया है। अगर वो फीलिंग है, जैसे शांति है, खुशी है, उसको फील कीजिए, स्माइल कीजिए, उसको अपने हृदय के अंदर लेके आइए, बाहर से भी या कहीं से भी लेके आइए। हृदय को टच कीजिए, बोलिए थैंक यू। ऐसे ही रहिए। मन में कहिए, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, यस, यस, यस। 3 बार गहरी सांस लेके छोड़िए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्माइल। आई होप यू आर स्माइलिंग। आपको जो भी अगर चाहिए वो मिलेगा, तो स्माइल तो आना चाहिए। आई होप कि आप स्माइल कर रहे हो। आई होप ऐसे ही चीज आपने मांगा है जिससे आपको स्माइल आता है। ओके, नाउ वी विल रिलीज ऑल द एक्सेस एनर्जी। सामने पृथ्वी की कल्पना कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको रिलीज करेंगे। लेट एवरी पर्सन, एवरी बीइंग बी ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ, हैप्पीनेस। अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद पहुंचाइए, संपत्ति और समृद्धि हो जाए सबका, आध्यात्मिक विकास हो सबका।
जो भी उनके मनोकामनाएं हैं सही तरीके से प्राकृतिक नियम अनुसार साकार हो। तथास्तु। आप भी आपके हाथ नीचे की तरफ रखिए, पैरों पे रख सकते हैं, रीढ़ की हड्डी की ओर ध्यान और आपके पैरों के तलवों की ओर ध्यान। ऐसे कल्पना कीजिए कि गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे से और पैरों के तलवों के नीचे से पृथ्वी की तरफ जा रहा है और पृथ्वी के नीचे जा रहा है 10 फुट। 3 बार गहरी सांस लेके छोड़िए। और मन में कहिए, मैं धरती माता से स्ट्रांगली जुड़ा हूं, हम जुड़े हैं, सही तरीके से जुड़े हैं। और धरती माता को आशीर्वाद पहुंचाइए। लेट मदर अर्थ बी ब्लेस्ड विथ लाइट, लव एंड पावर। आंतरिक शांति का आशीर्वाद पहुंचाइए धरती माँ को। ब्लेस मदर अर्थ को आशीर्वाद पहुंचाइए अच्छे मिट्टी का, अच्छे पानी का, अच्छे हवा का, और अच्छे लोग पैदा हो, ऐसे आशीर्वाद पहुंचाइए वो सुनहरी रंग रोशनी द्वारा। खुद को मदर अर्थ के साथ जुड़ने दीजिए सही तरीके से। धरती माँ का पुनर्निर्माण, पुनर्उत्पन्न हो। तथास्तु। आप ऐसे भी कल्पना कर सकते हैं कि धरती माता भी स्माइल कर रहे हैं और वो आपको बोल रहे हैं थैंक यू। आप उनको बोल रहे थैंक यू। एक दूसरे को बोलिए थैंक यू। और गहरी सांस लेके छोड़िए 3 बार। That's it. We can close with a prayer. To the Supreme God, thank you. To my spiritual teacher, all spiritual teachers, thank you. To all the spiritual teachers of my past, present, and future, thank you. My inner spiritual teacher, thank you. To all spiritual teachers, thank you. Thank you for your light, love, and power, your guidance, your help, and healing. आपके सारे ऊर्जाओं और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब भी आप रेडी हैं, आपकी आंखें खोल सकते हैं। I hope you had a good meditation. I hope you're feeling better. And I am sure by God's grace, with teachers' blessings, हमेशा जो भी मुझसे बात करते हैं मैं ये रिपीट करता रहता हूँ, by God's grace and teachers' blessings. शक्ति हमेशा ईश्वर से आते हैं, परमपिता परमेश्वर जो रास्ता दिखाते हैं गुरु है। जब भी मैं अटकता हूँ कहीं पे, भगवान परमपिता परमेश्वर को भी याद करता हूँ, टीचर को भी याद करता हूँ, ताकि सही तरीके से सही टाइम तक से हम तक वो गाइडेंस पहुंचे और आप तक भी पहुंचे। So with this we come to the end of today's meditation. अभी इसमें जो 3 पार्ट्स है, इसमें एक है जो 3 पार्ट्स हैं, अलग पार्ट है। सबसे पहले हमने प्रेयर से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने ब्रीदिंग वगैरह किया रिलैक्स होने के लिए, उसके बाद हमने एक प्रेयर किया टीचर से कनेक्ट होने के लिए। दैट पार्ट इज द शरणागति पार्ट। वो प्रेयर आप रिपीट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, विल पुट इट ऑल्सो ऑन द ग्रुप, ताकि वो प्रेयर आप देखो, आप पढ़ो और आप डेली उसको यूज कर सकते हैं। 3 बार एंड में यस बोलना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे एनर्जी फ्लो होता है। विल शेयर द इंग्लिश एंड ऑल्सो विल शेयर द हिंदी फॉर एवरीबॉडी।
एंड यू कैन प्रैक्टिस दैट एवरी डे। ओके, उससे आपका कनेक्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा आपके टीचर और गुरु के साथ, एंड उसके थ्रू ईश्वर का जो दिव्य ऊर्जा है आपके थ्रू फ्लो होता जाएगा अच्छे से, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। So with this we end our meditation. And one thing that I had mentioned कि आप एंड तक रहिए। टीचर के थ्रू क्या होता है, टीचर के थ्रू हमारा जो ईश्वर का, परमपिता परमेश्वर का जो ऊर्जा है वो ऐसा तरीके से कन्वर्ट होता है ताकि हमको वो समझ में आए। अगर कोई ऐसा टेक्निक है जिससे यही सेम ईश्वरीय चैतन्य डायरेक्टली आपके लिए ब्लेसिंग और सपोर्ट के रूप में आए, तो क्या वो बहुत अच्छा होगा? मीनिंग, अगर गॉड का जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस एनर्जी है, इफ you are able to tap into that directly, wouldn't that be very, very wonderful? Ideally, it should be. I hope you've understood what I said. So there is a way that this is possible. And for that, I will be taking class end of August. So this is an announcement I want to make, end of August sometime. आप में से कुछ लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, कुछ लोग ने पूछे हैं ऑलरेडी। इट इज कॉल्ड एक्सेस कॉन्शियसनेस बार्स। सो एक्सेस कॉन्शियसनेस इज अ वे जहाँ पे यू कैन, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, उसको आप टैप कर सकते हैं, और आपके लाइफ में जहाँ पे आप अटके हैं वो एरिया में वो कॉन्शियसनेस चैनलाइज करके, जैसे एक टीचर या गुरु करके देता है कि वो आपके समझ के हिसाब से लेके आए ताकि आपको रास्ता दे, वैसे ही फ्रॉम दैट सुप्रीम द कॉन्शियसनेस जो भी आपको समझने में और गाइडेंस मिलने में ब्लॉकेजेस है, वो अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो हट जाएगा, नहीं तो कम होगा, रास्ता आपको मिलेगा। ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे आपको रास्ता मिलेगा, 100% गारंटी। इतना मैं श्योर हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस, टीचर्स ब्लेसिंग्स, मेरा एक्सपीरियंस है ये। सो अगर आपको वो सीखना है, यू कैन स्टे ऑन द ग्रुप एनीवे, एल्स इन द मैसेजेस, वो तो एनीवे ग्रुप पे आने वाला है, बट दैट विल बी समवेयर इन द एंड ऑफ अगस्त। Okay, towards third week of August, yeah, last week of August, or maybe second week of August, I don't know. I just thought I'll share this with you. Anybody is interested, you can contact. Okay. Apart from that, I hope you had a wonderful meditation. Doctor, I'm sorry, I'm अभी meditation के बाद और मैं थोड़ा ये हूँ. We will answer your question. Just a minute. I will stop the recording and then we'll answer your question. And anybody else is there, if you want to stay you can stay, if you want to go we can go. डॉक्टर, आप ऐसे कंडीशन में हो कि अभी आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए या बाद में दूं? चाहिए तो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बाद में दिया तो भी चलेगा। बाद में दिया तो भी चलेगा, ओके। ओ चलिए हाँ तो हाँ फिर सर। we will put it in the group. I like your question, so we'll ask this. आप ग्रुप पे भी एक बार, I hope you're in the group. यस सर, आई एम इन द ग्रुप। हाँ अच्छा, इसलिए आप, yeah, right, oh, that's how you got the link, sorry. So yes, so we will answer the question. You can post your question there once again and we will answer that. You can write it ओके down सर। exactly what you're looking for. Okay, we यस will सर, answer यस it. डेफिनेटली। यस Okay, सर, थैंक यू। चलिए, QR take code care. भेज दो। Thank you all for joining and we will see you in the next meditation. Okay, चलिए, take care. थैंक सर यू QR सर। कोड दे दो। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। Thank you.